Hello students, now I am going to continue with the chapter Circle of 10th standard. Today we going to start with the new concept, that is inscribed angle, which is the most important concept in this chapter. So first we are going to know what is the meaning of inscribed angle. So first see this figure. So in this figure we see that is there is angle ADB and the center of the circle is C. So what is the peculiarity of this angle? So we can easily see that the vertex of this angle is on the circle. Yes, and the arms of this angle intersected these circles at point A and B. So such type of angle is called as the inscribed angle. So we are going to see the definition of this one. So in this figure, the center of the circle, the vertex D, see here, the vertex D of angle PDQ. So we can say it is angle PDQ और angle ADC, कोई भी नाम आप बोल सकते हो. So angle PDQ lies on the circle. So ये जो angle है वो angle का जो vertex है D, it lies on the circle. And next one, the arms of angle PDQ intersect the circle at point A and B. एंड ये जो एंगल है दैट इज एंगल PDQ, उनके जो आर्म्स है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A एंड B. देन सच टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड एज एन इंस्क्राइब्ड एंगल. सो दिस इज कॉल्ड एज अ इंस्क्राइब्ड एंगल. नाउ सी इन दिस फिगर we can say that is this angle is we can change the name of the angle, that is angle ADB we can also say, and angle PDQ also we can say. Now I am going to say that is angle ADB. Yes, I am going to write here angle ADB is inscribed. It is inscribed in the arc. In the arc. Yes, कौन से आर्क में वो inscribed है? So see here angle ADB, ये जो inscribed है वो इस आर्क में inscribed है. मैं इस आर्क को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ इस तरह से. मतलब ये जो एंगल है, एंगल का जो वर्टेक्स है वो D है, तो उसके पीछे वाली जो आर्क आपको दिखाई दे रही है ADB, तो हम ऐसे बोलते हैं कि एंगल ADB इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ADB. मतलब एंगल का नाम और आर्क का नाम दोनों सेम ही है. इन द आर्क ADB, एंगल ADB इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ADB. समझ में आया? इंस्क्राइब एंगल जो है उसकी जो आर्क है वो दोनों का नाम सेम ही होता है. तो एंगल ADB इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ADB. जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जांपल हियर. देखो ये फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. सो इन दिस फिगर विच वन इज द इंस्क्राइब्ड एंगल? सो एंगल ABC, बिकॉज इस एंगल का जो वर्टेक्स है इट लाइज ऑन द सर्कल. सो angle ABC is inscribed in the arc ABC. आर्क का नाम भी सेम ही है. सो एंगल ABC is inscribed in the arc ABC. One more example. Again see here angle XYZ is there. So angle XYZ is inscribed since the vertex of the angle is on the circle and both the arms intersect the circles at X and Z. So this angle XYZ is on the circle, and so it is an inscribed angle in the arc XYZ. Angle XYZ is inscribed in the arc XYZ. So you have to keep in mind that is the name of the inscribed angle and the name of the arc, both are same. So how we can read it? I repeat it. Angle ABC is inscribed in the arc ABC. यहाँ पर angle XYZ is inscribed in the arc XYZ. See in your book, that is angle ADB is inscribed in the arc ADB. So यहाँ पे है angle ADB is inscribed in the arc ADB. So this is the concept of inscribed angle. Now we are going to see the concept of intercepted arc. Now see what is the meaning of intercepted arc. See the spelling, the previous concept in which we learn about the inscribed angle, and now the concept is intercepted arc. So what is the meaning of intercepted arc? So for this we are going to see all these figures. So
There are total 6 figures. So observe this figure. So can you say it is an inscribed angle? Yes, because the vertex is on the circle. So see, observe all the figures. Yes, tell me either third figure is an inscribed angle. No, because the vertex is not on the circle. Yes, figure 4 is also not an inscribed angle. It's not an inscribed angle. It's also not an inscribed angle. Now see, in each figure, the arc of the circle that lies in the interior of angle ABC is an arc intercepted by the angle ABC. मतलब ये जो एंगल हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर वाली जो आर्क है अंदर, मतलब AC, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक, इन दिस फिगर ऑल्सो यहाँ से यहाँ तक, ये जो सब है जो इनसाइड द एंगल है, एंगल के अंदर वाली जो आर्क है, इट इज़ नथिंग बट द intercepted arc. So the point of intersection of the circle and the angle, the arc, end points of the intercepted arc, and each side of the angle has to contain an end point of the arc. So in this figure, that is figure number 1, 2, 3, they have only one arc intercepted by the angle. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप. So जो ये जो एंगल है, एंगल AB से इसके अंदर वाली जो आर्क है ये, so it is the arc intercepted by this angle. Now in this case also, यहाँ पर भी ये जो आर्क हमें दिखाई दे रही है जिस पे मैंने ये ऐसा लाइंस ड्रॉ किया है, so this is the arc which is inside this angle, it is the intercepted arc. In this figure also AC, A से C तक ये जो पार्ट है which is inside this angle is nothing but the intercepted arc. So in first 3 figures there is only one arc. Yes. नाउ सी इन फोर्थ फिगर, देखो ये जो एंगल है इस एंगल के अंदर 2 आर्क्स हमें दिखाई दे रही है, एक ये वाली और ये ऊपर वाली. तो दिस एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल ने 2 आर्क इंटरसेप्ट किए हैं, ऐसा भी होता है. नेक्स्ट वन, इन दिस फिगर ऑल्सो देर आर 2 आर्क्स इंटरसेप्टेड बाय दिस एंगल. तो यहाँ पर भी मैं दिखा रही हूँ आपको ये से ड्रॉ करके, ये 2 आर्क्स जो है वो इस एंगल ने इंटरसेप्ट किए हैं. एंड इन द लास्ट फिगर देर इज ओनली वन आर्क. यस, इज इट करेक्ट? नो, हियर इज दिस वन, दिस इज आर्क एंड दिस वन इज ऑल्सो intercepted by this angle. So only in first 3 figures only one arc is intercepted by the angle, and the remaining 3 figures and there are in the remaining 3 figures there are 2 arcs which are intercepted by this angle. Now see, yes, one arc is intercepted by that angle, and in 4, 5 and 6 2 arcs are intercepted by the angle. Now see, in this figure, in figure 3.44 the arc is not intercepted with the arc, and as arm BC does not contain any end point of the arc. मतलब क्या है उसका, इस ये जो आर्क है ये AB, BB नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आर्क है वो आर्क एक ही आर्म पे है. सो यहाँ पे कोई भी एंगल, कोई भी आर्क यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं हो रही है. सो we are going to see the most important theorem of this chapter, that is inscribed angle theorem. So this theorem has actually more than one cases. Any one case you will be asked in your exam. So just we are going to see. So most of the examples are depend on this theorem. So see properly. And the statement of this theorem is the measure of inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it. इसका मतलब क्या होता है कि इंस्क्राइब्ड एंगल का जो भी मेजरमेंट है वो मेजरमेंट कैसे होता है, इट इज़ हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट. मतलब वो जो आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है उससे हाफ उसका मेजरमेंट होता है. मतलब अगर यहाँ पे मैंने जो फिगर ड्रॉ की है, सो आपको पता है कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो यहाँ पे मैंने अगर कुछ नाम दे दिया ए, तो ये एंगल का जो मेजरमेंट है वो इस आर्क से हाफ होता है. यहाँ पर भी एंगल ए बी सी, इट इज़ द इंस्क्राइब्ड एंगल, उसने ये आर्क इंटरसेप्ट की है ए एक्स सी, तो इस ये एंगल जो है वो एंगल इससे हाफ होता है. मतलब ये अगर 100 है
तो इसका मेजरमेंट कितना होगा 50, ये 40 है तो इसका मेजरमेंट कितना होगा 20। सिमिलरली यहाँ पे हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो एंगल है एंगल BAC, इसका जो मेजरमेंट है वो उसने जो आर्क इंटरसेप्ट की है, कौन सी आर्क इंटरसेप्ट की है, BD एंड C। यस, सो BDC ये जो आर्क है वो आर्क इस एंगल ने इंटरसेप्ट किए। मैं थोड़ा सा फिगर, ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है वो छोड़ के मैं ये फिगर ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे नाम है दैट इज़ BA एंड यहाँ पे है C एंड इस बीच में एक नाम उन्होंने दे दिया है दैट इज़ D। तो ये जो एंगल है एंगल BAC, इट इज़ द इंस्क्राइब्ड एंगल। इसका जो मेजरमेंट है वो इस आर्क से हाफ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इज़ एंगल BAC इज़ हाफ ऑफ द मेजर आर्क BDC। तो इससे हाफ उसका मेजरमेंट होता है, मतलब अगर ये 10 है, BDC 10 है, तो ये कितना हुआ 5 हुआ। सो सी व्हाट इज द गिवन। सो इन द सर्कल विथ सेंटर O, एंगल BAC इज़ द इंस्क्राइब्ड एंगल। सो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है, वो आर्क है आर्क BAC, मतलब एंगल BAC इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क BAC एंड उसने कौन सी आर्क इंटरसेप्ट की है, आर्क जो इंटरसेप्ट की है वो है BDC। सो इंस्क्राइब्ड इन द आर्क BAC एंड आर्क BDC, ये वाली BDC इज इंटरसेप्टेड बाय दिस एंगल। सो लिसन केयरफुली, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। एंगल BAC इज द inscribed angle in the arc BAC। yes, inscribed O इस आर्क में है, लेकिन उसने कौन सी आर्क इंटरसेप्ट की है, वो है BDC, ये वाली जो उस एंगल के अंदर होती है वो आर्क वो इंटरसेप्ट करता है। सो एंगल BAC ने कौन सी आर्क इंटरसेप्ट की है, BDC। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो एंगल BAC इसका जो मेजरमेंट है वो इससे हाफ है। सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क BDC। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, सो ड्रॉ रे AO, तो AO ड्रॉ किया है हमने, वो एक्सटेंड भी किया है एंड इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट E, तो यहाँ तक हमने वो इंटरसेक्ट किया है। आफ्टर दैट वी जॉइन दिस OC, सो यू नो दैट इज़ द OC एंड OA, दीज आर द रेडिया ऑफ दिस सर्कल। ये दोनों सेम होती है, मतलब बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम ये दोनों साइड्स अगर सेम है तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। सो ये एंगल x है और ये एंगल भी x ही है। नाउ सी हाउ टू सॉल्व द थ्योरम। सो इन ट्रायंगल AOC, सी हियर, इन ट्रायंगल AOC मैंने जो अभी बताया वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। साइड OA इज कॉन्ग्रुएंट विथ साइड OC, मतलब उसका रीज़न जो है वो अभी मैंने बताया दैट इज़ रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। और अगर साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी सेम है बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। सो एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल OCA इज इक्वल्स टू बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द थ्योरम ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। और उन दोनों को हमने जो एंगल है वो x है ऐसा हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x ही है। एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ। इन 9th स्टैंडर्ड यू लर्न अबाउट द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। सपोज दिस इज एंगल ट्रायंगल ABC एंड यहाँ पे D। सो दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल। यस, तो अगर ये एंगल x है, ये भी एंगल x है, तो आपको पता है कि ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, उसका जो मेजरमेंट रहता है वो उनके जो रिमोट इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होता है। मतलब अपने रिमोट इंटीरियर एंगल पढ़े हैं, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है यस ये एक्सटीरियर एंगल है तो उनके रिमोट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये जो उसका लीनियर पेयर में जो एंगल है वो हम छोड़ते हैं, ये दोनों जो एंगल है उनको हम बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। तो थ्योरम क्या है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का जो एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट रहता है वो इस रिमोट इंटीरियर एंगल के सम इतना होता है। मतलब इसका मेजरमेंट कितना हुआ, x + x दैट इज़ 2x। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं
तो ये हम ट्रायंगल यहाँ पे देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ। तो ये है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये छोड़ देते हैं हम। तो इसका जो मेजरमेंट है वो इन दोनों के सम जितना है, तो वो कितना हुआ 2x। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इज़ एंगल EOC इज इक्वल्स टू OAC प्लस एंगल OCA, दैट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंड सो x प्लस x इट इज़ 2x। सो EOC का जो मेजरमेंट है EOC, इसका जो मेजरमेंट है वो हुआ 2x। और हमने ये भी सीखा है कि सेंट्रल एंगल का जितना मेजरमेंट होता है उतना उससे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क का भी मेजरमेंट होता है। मतलब ये एंगल और ये मेजरमेंट, ये दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो ये आर्क EC है उसका भी मेजरमेंट कितना हुआ 2x हुआ। सो मेजर आर्क EC इज इक्वल्स टू 2x। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ measure of an arc. So from 1 and 2 what we get here, that is angle OAC is equals to angle EAC. So see here from 1 and 2, so 1 वाला स्टेटमेंट ये है, 2 वाला स्टेटमेंट ये है। सो इसमें हमने क्या दिखाया है, OAC एंड OCA का मेजरमेंट जो है वो है x है, और इसमें हमने क्या दिखाया कि EC जो है उसका मेजरमेंट क्या है 2x है। सो फ्रॉम 1 and 2 what we get here, that is angle OAC, see here एंगल OAC, इसका मतलब एंगल वही है लेकिन हमने क्या किया है उसका नेम चेंज किया है। सो EAC ये हमने एंगल यहाँ पे ले लिया, जस्ट चेंजिंग द नेम ऑफ द एंगल। यहाँ से हम बोल रहे थे OAC, तो हम कहाँ से बोल रहे हैं अभी EAC से बोल रहे हैं। तो ये दोनों एंगल सेम है। सो एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल EAC इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क EC, हाफ मेजर आर्क EC। ये हमने फ्रॉम 1 और 2 से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिमिलरली ड्राइंग OB वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट इज़ एंगल EAB, मतलब ये जो एंगल है साइड वाला EAB वो भी कितना है हाफ मेजर आर्क B जितना है, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। यस तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से आपको बताती हूँ, हमने यहाँ पे क्या लिया था OAC एंड OCA इज इक्वल्स टू x, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यही था। सेकेंड वाला क्या हमने क्या प्रूव किया था, दैट इज़ मेजर आर्क EC इज इक्वल्स टू 2x। सो फ्रॉम 1 and 2 हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये आया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था OAC था, ठीक है। तो OAC इज इक्वल्स टू OCA, तो OAC तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ OAC मतलब ही कौन सा एंगल है EAC एंगल है, ठीक है। तो EAC जो है EAC इट इज़ द इंस्क्राइब्ड एंगल, और EAC इसका जो एंगल है वो हमने पहले से फाइंड आउट कर लिया था, दैट इज़ EAC मतलब क्या है OAC है, और इसका जो मेजरमेंट है इन दोनों का वो क्या है x है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया था, दैट इज़ मेजर आर्क EC इज इक्वल्स टू 2x। सो वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू एंड तो हमें यहाँ पे मिल गया हाफ मेजर आर्क EC। तो वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं उस साइड में, दैट इज़ एंगल EAB का जो मेजरमेंट है वो भी हम प्रूव कर सकते हैं, इट इज़ हाफ ऑफ आर्क BA। एंड आफ्टर दैट वी टेकिंग द एडिशन ऑफ दिस टू स्टेटमेंट्स, 3 वाला और 4 वाला का हम एडिशन करने वाले। सो सी द साइड लेफ्ट साइड दैट इज़ एंगल EAC प्लस एंगल EAB, इन दोनों का हम एडिशन करें तो राइट साइड का भी एडिशन होगा। सो हाफ मेजर आर्क AC प्लस हाफ मेजर आर्क BE, एंड इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं ये दो एंगल का, तो हमें क्या मिल रहा है एंगल BAC बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू हाफ, इन दोनों का एडिशन हाफ मैंने कॉमन ले लिया, तो आर्क EC एंड आर्क BE, सी आर्क EC एंड आर्क BE दोनों का एडिशन करके हमें कौन सी आर्क मिलने वाली है BDC। सो इट इज़ BEC और वी कैन से इट इज़ BDC। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट इज़ मेजर एंगल BAC इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क BDC। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल है उसका जो मेजरमेंट है वो उसने जो आर्क इंटरसेप्ट की है उससे हाफ रहता है। सो इन दिस फिगर ऑल्सो सी दिस फिगर, in this figure angle BAC, just listen,
एंगल BAC, ये जो एंगल है इट इज़ ऑल्सो इंस्क्राइब्ड एंगल। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से मैंने डायमीटर जो सेंटर में से एक एंगल ड्रॉ किया है। तो एंगल BAE, ये जो टोटल एंगल है BAE, इसमें से अगर मैं ये एंगल CAE माइनस करती है तो मुझे ये एंगल मिल जाता है। तो BAE जो है दैट इज़ BAE, उसने कौन सी आर्क इंटरसेप्ट की है, BCE। सो हाफ मेजर आर्क BCE, और इसने कौन सी की है, हाफ मेजर आर्क CE। तो उन दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, दैट इज़ आर्क BC। तो वैसे भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने ये थ्योरम पूरा प्रूव करके दिखाया वैसे। सो दिस थ्योरम इज़ ऑल्सो स्टेटेड एज, मैंने ये जो स्टेटमेंट आपको बताया था, दैट इज़ द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज़ हाफ ऑफ द मेजर ऑफ एन ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। ये स्टेटमेंट ऐसे भी बोला जाता है, कोई भी आप ध्यान में रख सकते हो। द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल is half of the measure of the angle subtended by the arc at the center. So this is all about the concept that is inscribed angle and intercepted arc. And यहाँ पे हमने एक बहुत ही important theorem देखा, that is inscribed angle theorem, and the remaining concept we will see in the next lecture. Thank you.